Hello dear student, this is Ranjit Parashar here, and today we will discuss more about your first lesson, your SST book, our earth, continents and oceans. Dear students, we have discussed a lot about ocean and continents in our previous lecture. हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. But going further discussion, we have a quick recap about the oceans and continents. So, as I have mentioned you earlier that there are 7 continents and 5 major oceans. आपको मैंने बताया था कि जो कॉन्टिनेंट्स क्या होता है और ओशंस क्या होता है और कितने तरह के होते हैं. आज हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे आगे बढ़ने से पहले. बात करें अगर हम कॉन्टिनेंट्स की, इफ समवन आस्क यू डिफाइन कॉन्टिनेंट्स, देन यू हैव टू से दैट कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मास सराउंडेड बाय द वाटर or separated by the water bodies, and there are 7 continents. Just look first page of your book. The land masses on the earth's surface that are surrounded by water on all sides are called continents, and there are 7 continents. Asia, that is the largest continent, and we have discussed about the Asia in previous lecture. Africa, Antarctica, Australia, Europe, North America and South America. These continents are separated by the large stretches of water bodies called oceans. So you can also define the ocean, the large land mass of water. The large water body is called ocean, and the large land masses that is surrounded by the water called oceans. Now, just a quick recap about the continents and their features. So, dear students, we will discuss about the largest continent here. Turn on your next page. You will see about that there are 7 continents, and the largest amongst them, the Asia is the largest continent of the world, and it occupies the 1/3 of the land mass of our planet. There are ocean 3 sides. 3 साइड इसके ओशियन है. हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में. And in the north, look at the figure. In the north, it is surrounded by Arctic Ocean. To the east is surrounded by the Pacific Ocean, and to the south is surrounded by the Indian Ocean. A variety of landmass are found here. यहाँ पर बहुत सारे लैंड मास पाए जाते हैं. वेराइटीज ऑफ लैंड मासेस आर फाउंड हेयर, एंड सम ऑफ देम द हाईएस्ट माउंटेन्स. दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंटेन है, द माउंट एवरेस्ट, दैट लाई इन द एशिया. Asia has the world's most populous continent. एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, and that is the China, the most populating country, and afterwards the India is the second most populous country in the world. India and its neighbors collectively called the Indian subcontinents. Someone may ask you that define Indian subcontinent. अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स क्या है, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप कह सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स बिकॉज दे शेयर कॉमन फिजिकल बाउंड्रीज और cultural features. And next is the second largest continent is the Africa, which is surrounded by water bodies on all side. यानी कि अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है, यानी पहले नंबर पर है आपके एशिया और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है अफ्रीका.
To the north lies the Mediterranean Sea. To the east is the Indian Ocean, and to the west is the Atlantic Ocean. Due to its size and extent, a variety of landforms are found here. चूँकि इसका साइज बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पर वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स भी पाए जाते हैं. अगर हम दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, that is the Nile, and the largest desert, that is the Sahara, are found here. The Suez Canal connects the Mediterranean Sea to the Red Sea, and this canal in Egypt is man-made. अगर ऐसा माना जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन-मेड कनाल जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे स्वेज कनाल, जो कि मेडिटरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है. It allows two-way water transportation between Europe and Asia without having to go around the Africa. यानी अफ्रीका जाए बगैर ये यूरोप और एशिया में वाटर बॉडीज को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. अब हम बात करेंगे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज नॉर्थ अमेरिका. Actually, Christopher Columbus discovered the North America. आपने नाम सुना होगा, अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी. द हाईएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट इज द माउंट मैकिनली इन अलास्का. जो सबसे ऊंची चोटी है और नॉर्थ अमेरिका में है वो है माउंट मैकिनली इन अलास्का. The Rockies stretch along the western part, and the Alpackian Mountains stretch along the eastern part of this continent. The entire continent lies in the north hemisphere. जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, एंड सम पार्ट्स विद इन द आर्कटिक सर्कल, और इसका थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विद द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द USA एंड कनाडा ऑक्यूपाइंग द सस्टेनेबल पार्ट ऑफ इट. तो अगर हम बात करें तो ये सबसे एडवांस कॉन्टिनेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा जैसे शहर जो हैं यहाँ पर हैं, यानी सॉरी कनाडा देश बोले हम, कनाडा जैसे देश हैं यहाँ पर. अगर हम फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें बच्चों, तो वो है आपका साउथ अमेरिका. चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका and South America are joined by the Isthmus of Panama. यानी पनामा कनाल के द्वारा ये जोड़ा जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. एंड द एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न और नॉर्दर्न और साउथ, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट पार्ट में इसके एंडीज माउंटेन जो है, इंडीज पर्वत जो है वो फैले हुए हैं. द फेमस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आपने सुना होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, घने जंगल है वहाँ पर, यहीं पाए जाते हैं यानी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. विच आर वन ऑफ द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड हियर. दुनिया का सबसे थिकेस्ट मीन्स सबसे घना जंगल जो है वो यहाँ पाया जाता है. अगर हम फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका. इट डज नॉट हैव मच लाइफ अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट लिविंग इन द रिसर्च स्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ सच एज पेंगुइन्स, वेल्स एंड सील्स. हालांकि यहाँ पर जो है वो ह्यूमन लाइफ ज़्यादा नहीं है, अगर हम साइंटिस्ट को छोड़ दें जो रिसर्च स्टेशन में है वहाँ, या वाइल्ड लाइफ जैसे पेंगुइन वगैरह, वेल और सील वगैरह जो हैं वहाँ पर रहते हैं. बाकी यहाँ पर
लाइफ बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि अंटार्कटिका और आर्कटिक ये ऐसे रीजन है जहाँ पर लगभग डिजर्टेड, कोल्ड डिजर्टेड रहता है, मीन्स ठंड पड़ती है वहाँ पर और हमेशा बर्फबारी रहती है, बर्फ जमा हुआ रहता है, तो इसलिए यहाँ पर रहना संभव नहीं है किसी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका रहता है। सो ओनली फ्यू हर्ब्स कैन ग्रो हेयर, बहुत कम पौधे जो होते हैं यहाँ पर ग्रो करते हैं। और चूँकि पूरे तरह से ये बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए हम इसे वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप। यूरोप इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड हैज़ सम ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज in the world, even though it is quite small in size. यूरोप छठे नंबर पर है। अगर हम अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी एडवांस है। अगर दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट की हम बात करें, इट इज़ एशियाज़ नेबर एंड इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये जो है एशिया का एक नेबर कंट्री है और पूरी तरीके से लगभग जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। यानी अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब को दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोल सकते हैं। यूरोप एंड एशिया आर समटाइम्स टुगेदर नोन एज यूरेशिया। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन यूरेशिया, तो आप क्या कहेंगे? यूरेशिया कैन बी डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया। यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द सेवेंथ कॉन्टिनेंट की बात करें हम, दैट इज द ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ एन आइलैंड सिंस इट इज सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल साइड। अगर आपने आइलैंड की डेफिनेशन पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, तो आपको पता होगा कि आइलैंड क्या होते हैं। आइलैंड आर द लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड। चारों तरफ से ये पानी से घिरे हुए होते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया एंटायरली लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड and several other islands together form Australia or Australia Island. The Great Barrier Reef and the Great Australian Desert are the two well-known features of this continent. The Great Barrier Reef की बात करें और Great Australian Desert की बात करें, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर, इस दोनों चीज़ों के लिए ये फेमस है ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रहे, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट and Australia is the smallest continent. Dear students, अब हम बात करेंगे ओशियंस की। You know that there are 5 major ocean in the world. दुनिया में 5 ओशियन हैं जो बड़े हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनकी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। They are the 5 ocean: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the आर्कटिक ओशियन एंड द साउथर्न ओशियन। ये हमारे 5 ओशियन हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन के बारे में। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और सबसे गहरा है इस दुनिया में। इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये लगभग वृत्ताकार यानी गोलाकार का है, सर्कुलर शेप में है। सर्कुलर जानते होंगे आप। इट सेपरेट्स द अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये अमेरिका को यानी पैसिफिक ओशियन जो है वो अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है। एंड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, ट्रेंच मीन्स अ पिट होल, और द डेप्थ यानी जो दुनिया की सबसे गहराई वाली जगह जो है वो है मरीना ट्रेंच, which has the depth of the 10,994 meter lies in it. वो यहीं पर है। यानी पैसिफिक ओशियन में दुनिया की सबसे गहरा पॉइंट जो है यानी मरीना ट्रेंच पाया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इज द अटलांटिक ओशियन।
सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन जो है वो अटलांटिक ओशियन है, विच सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। इट इज शेप लाइक ए लेटर एस, ये जो है एस लेटर की शेप में है, एस एकदम घुमावदार एस की तरह है। एंड ए यूनिक फीचर ऑफ दिस ओशियन इज द मिड अटलांटिक रीज, इसका जो एक यूनिक फीचर है, जो मिड अटलांटिक रीज जो है वो लगभग सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज है। सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज का मतलब पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ माउंटेन है, यानी पहले माउंटेन था, आज वो डूब गया है पूरी तरीके से। विच हैज सेवरल हाई पीक्स दैट फॉर्म आइलैंड इन द ओशियन, यानी मिड अटलांटिक रीज जो है उसके कुछ छोटे छोटे माउंटेन पीक्स जो हैं वो आज पानी के अंदर एक आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, द इंडियन ओशियन की। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन एंड इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री, दैट इज इंडिया। आपको पता है इंडिया के साउथ में पाया जाता है एकमात्र ओशियन जिसका नाम किसी देश पर रखा गया, जो कि इंडिया के नाम पर रखा गया। एशिया लाइज टू इट्स नॉर्थ, इसके नॉर्थ में एशिया है। ऑस्ट्रेलिया टू इट्स ईस्ट, इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। एंड अफ्रीका टू द वेस्ट, और वेस्ट में इसके अफ्रीका है। द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस ओशियन आर द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, और इसके दो बड़े बड़े पार्ट्स जो हैं अगर हम सेपरेट करें तो आप अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के रूप में इसको सेपरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चौथे सबसे बड़े ओशियन, साउथर्न ओशियन के बारे में। एक्चुअली इट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को इसने घेर रखा है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मार्जिंग ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, यानी कि ये जो पैसिफिक ओशियन है साउथर्न पार्ट में उसके एज के पास है, यानी कि मार्जिन पर है। एंड द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन and Indian Ocean and Atlantic Ocean lie in the southern hemisphere, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। अब हमारा आखिरी ओशियन बचता है, वो है आर्कटिक ओशियन। डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशियन सिंस इट इज लोकेटेड मोस्टली विद इन द आर्कटिक सर्कल। इट इज कवर्ड विद आइस ऑल द टाइम। चूंकि ये आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, हम ग्लोब को देखें तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आर्कटिक रीजन पाया जाता है, जहाँ पर बर्फ से ढका रहता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक ये दोनों साउथ और नॉर्थ एक्सट्रीम पॉइंट हैं ग्लोब के, जो कि लगभग बर्फ से ढका हुआ होता है। द नॉर्दर्न पोल और द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड हेयर एंड इट इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। ये धरती पर सबसे उत्तरी ध्रुव है, यानी उत्तर का सबसे अंतिम छोर है। एंड द एरिया सराउंडेड इट फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो इसका रीजन जो है वो चारों तरफ से लगभग बर्फ से ढका रहता है पूरे साल के लिए, इसीलिए इसको फ्रोजन ओशियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन रेज बहुत कम पहुँच पाती है नॉर्थ और साउथर्न एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो यहाँ बहुत अधिक ठंड होती है। और नॉर्मली जो ओशियन है ये स्नो कवर्ड या नॉर्मली सॉलिड आइस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम सेकेंड चैप्टर को स्टडी करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।